कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare राम Hare, Hare राम Ram, Hare Ram, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम गौरांगाय 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 जय गौरांगाय 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 जय जय सच्चिदानंद गौर हरि सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर गुरु परंपरा Parampara, Parampara, Guru गुरु Parampara, परंपरा Parampara, गुरु Parampara, परंपरा Guru जय जय Parampara, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम महाराज भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम महाराज जया भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम महाराज भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम जय जय Gurudev, 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 जय जय Gurudev. गुरुदेव गुरुदेव प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। थोड़ा सा इस भजन का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सब लोगों से फिर बात करेंगे। जो बाकी जुड़े तब तक के लिए उनका स्वागत। So anyone can see the screen and read it. Is it visible enough to read, or shall I zoom it? Okay, I will read first line. This is he who has failed to carefully worship the lotus feet of Srimati Radhika, which is abode of all auspiciousness. He has not taken shelter in the transcendental abode of Vrindavan, which is decorated with beautiful lotus. Second line, anyone want to read? I can try to zoom and then scroll. he who in this life has not associated with the uh, screen थोड़ा सा बड़ा हो रहा है शायद, मैं देख नहीं पा रहा था। करूं? जूम नहीं, आउट zoom कीजिए प्रभु जी, ज्यादा जूम इन out हो हो, गया, ज्यादा थोड़ा zoom in हो जूम रहा आउट। है। अच्छा, ज्यादा जूम हो गया। ओके, हाँ, और थोड़ा स्टिल कॉर्नर्स नहीं दिख रहा है। जूम आउट कीजिए प्रभु जी, मतलब ज्यादा जूम इन हो गया। ओके, नाउ आई थिंक ये थोड़ा रिफ्लेक्ट लेट होगा, मेरे करने के बाद थोड़ी देर बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। लेट मी ट्राई टू। अभी भी हमको नंबर नहीं दिख रहा है प्रभु जी। अच्छा, नंबर नहीं दिख रहा, वो तो आगे पढ़ लिया था ना आधा उन्होंने। He who is in this जो भी life has डिफॉल्ट not है वो रखिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है तो पढ़ लीजिए। He who in this life has not associated with the devotees of Radhika, who are very wise and whose experience the bliss of उसके आगे है प्रभु, हाँ वाइज के आगे और भी है, लाइन थोड़ी लंबी है, थोड़ा
wise and whose devotion of Radha is very deep. How will such a person ever experience the bliss of bathing in the ocean of Lord Shyama's sublime mellows? Please understand this most attentively. Very nice. Third line. Srimati Radhika is the exemplary teacher of the brilliant mellows of conjugal love. This pure love between Radha and Madhava is very worthy of discussion and contemplation. Very nice. Next. He who has grasped hold of the lotus feet of Radha with great care obtains the lotus feet of Krishna. अभी थोड़ा इधर कर दीजिए. हाँ अभी जा रहा हूँ. Which are priceless jewels. Very nice. Next. Without taking shelter of the lotus feet of Radha, one can never personally meet Lord Krishna. The Vedic sculptures declare that Krishna is the property of the maid servants of Sri Radha. of Shri Radha. Very nice. Last line. कोई पढ़ेंगे? Here. Abandoning wealth, followers, wife, sons, and friends, and giving up material. प्रभु जी उस तरफ जाना. हाँ, materialistic activities and intellectual knowledge, being absorbed in the Sweetness. प्रभु जी. नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Sweetness. In the sweetness. हाँ 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 हाँ. Next. Sweetness दिखाई नहीं दे रहा है. of the Sweetness के बाद. service to lotus feet of Srimati Radha Rani. Sweetness of the lotus feet of Srimati Radha Rani. This is Bhakti Vinod's conviction. तो ये बहुत ही सुंदर भजन है, क्योंकि इस भजन को हमने गाया. हम लोग ऊपर जी के भाव में प्रवेश कर रहे हैं. धीरे धीरे हम बृहद भागवतामृत ग्रंथ के माध्यम से हम बहुत ही विशेष तत्वों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. तो इस भजन के माध्यम में भी भक्ति विनोद ठाकुर जो है इसी चीज का वर्णन करते हैं. कहते हैं राधिका चरण पद्म सकल श्रेय सर्व. कहते हैं जिन्होंने राधा रानी के चरणों का आश्रय नहीं लिया है. He who has failed to carefully worship Lord Radhika, Srimati Radhika, which is abode of all auspiciousness, जो समस्त शुभदा है, समस्त शुभ करने वाले हैं. He has not taken shelter in the transcendental abode known as Vrindavan, जिसने शरण नहीं की लिया है, जो कि राधा रानी के चरण पदों से अंकित है. कहते हैं जिसने he who has in whose life is not associated with purity of Radhika, जिन्होंने राधा रानी के भक्तों का संग नहीं किया. कहते हैं बहुत सुंदर कि जिन्होंने राधा रानी के भक्तों का संग नहीं किया, who are very wise and whose devotion to Sri Radhika is deep, how will such a person ever experience the bliss of bathing in the ocean of Sri Shyama's sublime mellows? Please understand this most attentively. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसको बड़ा ध्यान से सुनो और समझो. ये कोई साधारण विषय नहीं है, ये बड़ा गुही विषय की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि राधिका चरण रेणु जिसने नहीं किया है उसको भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती. राधा रानी ही समस्त प्रकार के जो रास का, जो रस की अधिष्ठात्रा है, और जो शुद्ध राधा गोविंद का जो प्रेम है उसको वही प्रदान कर सकती है और समझा सकती है. He who has grasped hold of lotus feet of Radhika with great care obtains lotus feet of Krishna. जिन्होंने राधा रानी के चरणों को आश्रय ग्रहण किया हुआ है उनको अनायास ही कृष्ण मिल जाते हैं. और without taking shelter of lotus feet of Radhika, one can never personally meet Lord Krishna. अगर राधा रानी के चरण आश्रय हम नहीं लेते हैं तो कृष्ण प्राप्ति होना असंभव है. समस्त वैदिक शास्त्र इस बात का गुणगान करते हैं कि राधा रानी का दास है कृष्ण. क्या कितना सुंदर कि कृष्ण ही राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं. Abandoning wealth, followers, sons, friends, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इन सब को छोड़ छाड़ के, इन सब के प्रति आसक्ति छोड़ करके और समस्त भौतिक विद्याओं को छोड़ करके, अपना इंटेलेक्चुअल नॉलेज छोड़ करके कि नहीं वेद शास्त्र तो इस प्रकार कहते हैं और इस प्रकार से मैं केवल राधा रानी की सेवा की अभिलाषा करना ही मेरा एकमात्र
लक्ष्य है और मुझे इसमें पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा है। तो इस भजन के माध्यम से हम थोड़ा सा इन विचारों को समझे कि जो हमारे गुरुजन हमको दे रहे हैं, उनका भक्तिविनोद ठाकुर हमारी गुरु परंपरा में हम उनको मानते हैं, तो उनके विचार क्या है, वो किस चीज को स्वीकार करते हैं, वो किस चीज को मानते हैं, हम भी उन्हीं चीजों को स्वीकार करें, उन्हीं के अनुगत्य में हम भी जो है भजन साधन करें, उन्हीं विचारों को हम अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझे। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले हम सब लोग थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब भक्तों का जो थोड़े बाद में जुड़े, संगप्पा प्रभु, अनुराधा दीदी, शिवानी गुप्ता दीदी, वृंदावन चंद्र प्रभु, जोशी दीदी, शिवानी सूर्यवंशी दीदी, और देवश्री दीदी, आप सबका भागवत ग्रंथ के में आपका हार्दिक स्वागत। Dhanwas pranam to you also, Prabhu. Dhanwas pranam to everyone. Hare Krishna. आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये कथा मैंने सबको भेजा है क्योंकि बड़ा ही सुंदर तत्व विशेष है। कल हम मुकेश प्रभु और अनुराधा दीदी अपना कृष्ण की ओर कथा में भी रविवार का कार्यक्रम में कल सुबह फिर मिलेंगे। कल वामन महाराज जी का, वामन देव गोस्वामी का गुणगान करेंगे। और ये कथा जो है, इसमें हम सब लोग हर शनिवार और रविवार इस संघ में हम लोग यहाँ पर एक बड़ी ही गूढ़ रहस्य का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि समस्त शास्त्रों का सार है, समस्त वैदिक पुराणों का सार है, सार का सार है, भागवतम का भी सार है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। बड़ा ही आनंददायक ग्रंथ है। आप सब भक्त लोग इधर आप आए हैं तो आप लोग सब इसको समझने का प्रयास करें ठीक से, कि हम इस ग्रंथ को हृदयंगम कर सके और इसको समझ सके। तो इससे पहले कि हम इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएं, एक बार श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हुए सब लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयम् उद्दीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति निष्ठकी। तो सर्वप्रथम मैं परम आराध्य गुरुदेव मित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जस्ट 1 minute, somebody is trying to reach me. तो सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, समस्त रूपानुग गुरु वैष्णव ब्रजवासीगण, इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज विशेष तिथि भक्ति
कांत तीर्थ महाराज का आविर्भाव तिथि है, जो हमारे गुरुदेव के बड़े ही प्रिय गुरुभाई है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के परम प्रिय शिष्य, जिन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की। साथ में भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो हमारे परम गुरुदेव है, दादा गुरुदेव, उनके बड़े ही परम प्रिय थे। हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के 3 पिलर कहे गए हैं। There are 3 pillars of गौड़ीय वेदांत समिति: भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज और भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी। भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज ये तीनों भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य है। वामन महाराज जी ने तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से भी हरिनाम लिया था पहले, पर बाद में उन्होंने अपने आप को भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी का शिष्य मानने में ही अपना उसको ही अपना जीवन माना, क्योंकि उन्होंने उसको ही अपना शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, संन्यास गुरु ग्रहण करके उन्हीं को अपना सदगुरु माना। तो भक्तिवेदांत त्रिविक्रम महाराज को कहते थे ये, जैसे इन तीनों को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि वामन महाराज जी दीक्षा आदि देते थे पूरे बंगाल और असम सब जगह में जाकर के उनको आचार्य बनाया गया भक्तिवेदांत हमारे मठ का, देवानंद गौड़िया मठ का। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जाने के बाद उन्होंने बोला आप तीनों ही योग्य है, आप तीनों ही आचार्य बन सकते हैं, आप तीनों ही आचार्य बनिए या बन सकते हैं। तो कोई भी आचार्य बनने के लिए तैयार नहीं, कोई भी आचार्य नहीं बनना चाहता। कोई भी बोलते हैं कि नहीं हम विनम्र सेवा करेंगे, हम लोग सब भक्ति में सेवा करेंगे। आचार्य बनना बड़ा, गुरु बनना एक बड़ा ही विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, जब आप गुरु बनते हैं तो तब आपको अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाने ही पड़ता है। गुरु न शिष्या तस्य माता न तस्य पिता न तस्य भ्राता न तस्य। पिछली बार हमने भागवतम का श्लोक सुना था, ऋषि कुमार लोग बता रहे थे कि एक व्यक्ति को गुरु कदापि नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने शिष्य को भगवत धाम नहीं वापस ले जा सके। गुरु बनना कोई साधारण कार्य नहीं है, गुरु बनना कोई शोक नहीं है। अब गुरु के मंत्र के प्रभाव से हम बृहद भागवत अमृत का ये पूरा ग्रंथ सुन रहे हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा गुरु तत्व के बारे में भी विचार करेंगे कि गुरु देव की कृपा और गुरुदेव के मंत्र शक्ति से गोप कुमार अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो हमने कल पिछले शनिवार रविवार को थोड़ा सा पढ़ा। तो ये किसके प्रभाव से है? गोप कुमार इतने सारे ब्रह्मांडों को क्रॉस करते हुए जा रही है, ये कौन सा प्रभाव है? ये गुरुदेव के दिया गया मंत्र का प्रभाव। उस मंत्र से कितनी शक्ति है, वो क्या क्या करवाता है गोप कुमार से, हम आगे आगे सुनेंगे। और फिर गुरु तत्व और गुरु मंत्र के बारे में हमारी श्रद्धा और सुदृढ़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव कोई साधारण मृत्युशील व्यक्ति हम जैसा नहीं। वो राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की आज्ञा लेकर के इस धरती पर हम सब जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, जो संसार बहुबंधन से, संसार से अपने शिष्य को नहीं निकाल सकता, वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के एक शिष्य जब वो शरीर छोड़े, उनको आभास हुआ, तो कहते हैं कि उन्होंने जब उनको वो अपना अनुभव बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तो लेके जा रहे थे, तो उनको उस समय उन्होंने देखा कि भाई आप कहाँ ले जा रहे हैं? बोले ये सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का शिष्य है, इसको कोई भी चित्रगुप्त से कोई लेना देना नहीं, इनको सीधा भगवत कृपा भगवत प्रेम ही प्राप्त होगा। और ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे शास्त्र में भरे पड़े हैं कि अगर किसी कारण से सदगुरु का शिष्य, किसी कारण से उसने गुरु को नहीं त्यागा है, परंतु किसी न किसी कारण से वो अगर भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता, पर फिर भी अपने भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए कहता है कि मेरे से गलती हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो गुरुदेव उसको नरक से भी निकाल के लेके जाते हैं। तो गुरुदेव even goes to the door of Naraka and says, यमराज, this is my disciple, bring him, send him out. नरक में भी जाने वाले व्यक्ति को वहां से वो निकाल देते हैं। तो यमराज तो पहले ही बोलता है इनको फटाफट बाहर निकालो, अंदर गए तो अंदर ही सबको लेके जाएंगे, फिर हमारा नरक लोक खाली हो जाएगा। तो गुरुदेव का ये कर्तव्य है, और गुरुदेव में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो जीव को भगवत धाम तक ले जा सके, वही सदगुरु होता है। उसमें कई सारे so many considerations why one should accept guru तद्विधि परिपातन परिप्रश्न सेवया उपतक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस तत्व दर्शन कराने वाला ही गुरु हो सकता है।
और गुरु कैसा होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ श्रोता, तद विज्ञान अर्थम सब गुरु में अधिगच्छेत्। वर्णन करते हैं हमको किस लिए गुरु धारण करना है, उस विज्ञान को समझने, विज्ञान, तत्व विज्ञान, कौन सा तत्व विज्ञान? भगवत तत्व विज्ञान को समझने के लिए गुरुदेव का आश्रय लेना है। और गुरुदेव कैसे हो? ब्रह्मनिष्ठ श्रोत, समस्त शास्त्रों में विज्ञ अर्थात अपने शिष्य के संशयों को पूर्ण रूप से छेदन करने वाला। शिष्य ने किसी प्रकार का कोई प्रश्न उनके मन में आया, कोई दुविधा उनके मन में है, भक्ति विषय कोई उनका प्रश्न है, तो उसका संशय करे। ये नहीं कि तुम जब करो खुद ब खुद हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुम ये करो, ऐसे नहीं। आपके गुरुदेव के पास उन्होंने अपने गुरुदेव से उनकी सेवा की हो और उनसे ये तत्व ज्ञान न केवल सुना है बल्कि उसको रियलाइज किया हुआ है। ही मस्ट बी रियलाइज। तो श्रोता ब्रह्मनिष्ठ, उसको पूर्ण निष्ठा भगवत नाम में होनी चाहिए। अगर खुद ही भगवत नाम में निष्ठा नहीं है तो शिष्य को भगवत नाम में कैसे निष्ठा दिखा सकते? अगर खुद ही कुछ रियलाइजेशन नहीं है भगवान की, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अपनी सेवा का ज्ञान नहीं है भगवत नाम में, क्या सेवा करेंगे, क्या स्वरूप है? तो शिष्य को कैसे बताएंगे उनका स्वरूप क्या है, उनको कैसे सेवा करनी, उनका संबंध क्या है भगवान के साथ? इसलिए बहुत आवश्यक है कि गुरु करो जान के। हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते थे, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन वी एक्सेप्ट समबॉडी एज अ गुरु। पहले तो कृष्ण को ही हमारे हृदय में चाहिए तो गुरु के रूप में स्वीकार करें, उनसे ही प्रार्थना करें कि सदगुरु को मिलाएं। अगर हमारी प्रार्थनाएं निष्काम और निष्कलंक है तो वो सदगुरु अवश्य मिलाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना, कि अगर जिस प्रकार की हमारे हृदय की भावना है, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रकार के गुरु मिल जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, उन्होंने ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे बड़ा राज्य मिले, तो गुरु भी मिल गए, भले ही नारद मुनि मिले, और उनके हृदय में जिस प्रकार की भावना थी उसी प्रकार का उनको फिर भगवान ने राज्यपाठ दिया। 36,000 साल धरती का राज्य करो। लगा था मेरा स्टार्टिंग बजट छोटे से लगा, मेरा भाई तो मेरा सारा ही राज्यपाठ ले रहा है, मेरे पिताजी की गोद में भी नहीं बैठने दे रहा है। थोड़े बड़े हो गए, भाई का देहांत हो गया, भगवान ने उसको भी उठा लिया। उनकी भले ही ऐसी इच्छा न थी, परंतु उनके हृदय में, भक्त के हृदय में जो भावनाएं रहती है भगवान उसको पूर्ण कर देते। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे उदाहरण है। अगर हृदय में किसी प्रकार की कोई भावना रही, अगर हृदय में करदम मुनि, क्योंकि ध्रुव महाराज तो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जब उनको मिले भी बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर हृदय में तो एक भावना थी मुझे राज्य करना, मुझे पिता अपने दादा से ही बड़ा राज्य चाहिए। तो भगवान उनको कहते हैं ठीक है, आपको राज्य मिलेगा, आप यहीं पर रहो, भजन करो, करते रहो, बाद में आपको इतना बड़ा वैकुंठ भी दे दूंगा, वहां भी रहो। परंतु अपना पूर्ण प्रेम, पूर्ण भक्ति, पूर्ण जो शुद्ध भक्ति है, वो तो उनको वैकुंठ में भी निवास कर रहे हैं। ऑन द अदर कहते करदम मुनि, जो देवहूति पति करदम मुनि और देवहूति पुत्र कपिल देव के जो पिता है, वो भी जब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उनके हृदय में इच्छा थी सृष्टि को आगे बढ़ाने की थोड़ी, तो उन्होंने तपस्या की और भगवान जब प्रकट हुए, भगवान को कहा, भगवान मैं जानता हूं आपका भजन साधन करना चाहिए, पर निष्कपट भाव से उन्होंने अपने हृदय को वर्णन किया, पर मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक अच्छी कोई पुत्री, कोई आप कन्या दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति को उनको प्रदान किया। तो भगवान कहते थे क्योंकि तुम निष्कपट थे, तुम निष्कपट होने के कारण तुमने अपने हृदय की भावनाओं को स्पष्ट ही मेरे सामने वर्णन किया। ये नहीं कि अंदर राजपाठ करने की इच्छा थी और फिर बाहर नहीं, इसलिए तुम यहाँ पर संसार में तपस्या करो, बाद में हजारों वर्ष तक you can even live a गृहस्था लाइफ if you want, because there is some desire of enjoyment। भले ही जड़ सुख है इस दिव्य लोकों में भी, फिर भी वो प्राप्त करने के बाद आप नित्य निरंतर मेरे परम भक्त बन जाए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गुरुजन वर्णन करते हैं कि किस प्रकार निष्कपट भाव से अगर हम भगवान के, गुरु के, वैष्णव के पास जाते हैं, अपने हृदय को खोल देते हैं, तो कल्याण होना बहुत क्विकली पॉसिबल है। अगर हम कपट हृदय में रखते हैं, डुप्लिसिटी रखते हैं, हिडन चीजें रखते हैं, गुरु वैष्णव तो सब जानते हैं मगर हम नहीं बताते उनको, भगवान तो सब जानते हैं, हृदय में तो विराजमान वो पहले से ही बैठे हुए, वो जानते हैं अंदर क्या हो रहा है,
उनको से क्या छुपा सकते हैं? गुरुदेव तो सब जानते हैं इस व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, उनसे क्या छुपा सकते हैं? मगर अब गुरुदेव देख रहे हैं कि ये बला शरणागत है कि नहीं है, इसे में बताएगा कि नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, उस बीमारी का इलाज नहीं होगा। Although doctor may know, doctor knows what is the disease, but he will not because you don't want to get it corrected. तो इसी प्रकार से कहते हैं कि सतगुरु उस प्रकार का, उस स्तर का हो, सतगुरु के कृपा से, उनके मंत्र के, उनके प्रभाव से, उनकी कथा से your heart should transform towards Krishna consciousness. अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, तो या तो शिष्य में कहीं ना कहीं गलती है, तो गुरु में कहीं ना कहीं गलती है। तो गुरु तो पहले ऐसे बनना ही नहीं चाहिए जिसमें अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है, इसलिए गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज जी बार बार वर्णन करते हैं, गोस्वामी महाराज जी भी वर्णन करते हैं, गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, जब आपको राधा रानी की आज्ञा है, गोलोक वृंदावन धाम से आप आए हैं जीवों को कल्याण करने के लिए, तभी आप गुरु बनिए। अब राधा रानी की आज्ञा या कृष्ण की आज्ञा, अलग अलग संप्रदाय में कृष्ण नारायण भी आज्ञा दे सकते हैं, या आज्ञा इन द सेंस they have desire, that they have compassion, they want to serve this बद्ध जीव, इसलिए वो आते हैं। इसलिए गुरुदेव की महिमा एवं भगवान से भी ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि भगवान ने तो दर्द इस संसार में हमको डाला। Somebody sometimes devotees ask question कि भाई हम आए ही क्यों, हम क्यों नहीं भगवत धाम चले गए? Is it by chance? जयधर में इसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता है, उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, बट somehow or other if we say even Krishna has put us in this material world and we are suffering and enjoying both, जड़ानंद में हम आनंद ले रहे हैं और जड़ानंद के साथ बहुत कष्ट भी भोग रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति भाग रहा था और भागते भागते जब उसने वो टहनी पकड़ी और टहनी पकड़ के नीचे उसका पैर गिर गया और नीचे बड़े सारे देखा लंबा सा अंधा कुआं है, वहां पर बहुत सारे अजगर बैठे हुए हैं। भाग क्यों रहा था? क्योंकि शेर उसके पीछे पड़ा हुआ था। अब ऊपर शेर और पेड़ की टहनी लटकी हुई, उस लटकी हुई टहनी में ऊपर शेर उसको खाने को दौड़ रहा, नीचे अजगर मुंह खोल के बैठे हुए हैं। अब ये टहनी पे लटका हुआ है, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब टहनी पे लटका हुआ है तो क्या है, उस टहनी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। Anyone know this story further? Want to tell? उस मधुमक्खी के छत्ते पे क्या हो रहा है? ये श्रीमद् भागवतम की कथा। Anyone want to add? उसमें से drop of it. शहद गिर drop. रहा है। बिल्कुल सही। उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद की कुछ बूंदें गिर रही है। And और also साथ- there's a rat that is also trying to There's a rat. bite the. Right. That is, and all under all these circumstances, he forgets the entire miseries that are there, and he thinks that this is the most heavenly point of tasting that honey. This is how So he's not bothered about all the other surrounding fearful state, but Oh, he's no. interested in tasting the wonderness of the honey. How surprising. We laugh, but we are doing the same thing, isn't it? I laugh always on this, but every day I do the same thing, isn't it? इस एक शहद की बूंद इस मधुमक्खी के छत्ते से गिर रही, वो जीभ बाहर निकाल रहा है और शहद की बूंद उसके जीभ पे पड़ रही, बोला बहुत आनंद है भाई, इतना बढ़िया मिठास तो है। इट इज ट्रू, उसमें शहद में मिठास तो है, जड़ में थोड़ा सा आनंद तो है कि नहीं? हम संसार में अगर आनंद नहीं हो तो कौन जॉब करेगा, कौन दिन भर सुबह से शाम तक मरता रहेगा, ऑफिस जाएगा, ये करेगा वो करेगा? थोड़ा सा संसार में कुछ आनंद मिल रहा है। हमारे श्रीधर महाराज भी कहते हैं तीन अमृत है। एक तो अमृत कहते चंद्रमा में है, ऑल्दो इट इज जस्ट एन इंडिकेशन, बट चंद्रमा अमृत देता है, तभी तो फल फूलों में औषधि आती है, उसमें स्वाद आता है। और दूसरा अमृत कहते हैं स्त्री के या पुरुष के अधरू में है, उनके लिप्स में है, बड़ा इसमें भी अमृत कहा गया, तभी तो लोग पागल है काम के प्रति भाग रहे हैं यहाँ वहां। तो देयर इज सम टेस्ट समवेयर, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक दिस टेस्ट? एक शहद की बूंद ऊपर से गिर रही, मैं उसको जीभ पे ले रहा हूँ और ये दिख रहा है वहां पर, वृंदावन प्रभु कह रहे हैं वहां पे दो चूहे इस टहनी को काट रहे हैं ऑलरेडी। जिस टहनी को पकड़ के लटक रहा है व्यक्ति, उसमें दो सफेद चूहा और काला चूहा इसको ऑलरेडी काट रहा है। अब कुछ ही समय में ये टहनी कट करके उसको नीचे गिरना ही गिरना है, नीचे सांप तो उसको खाने ही वाले हैं। और अगर जैसे तैसे ऊपर आ भी गया तो ऊपर शेर खड़ा हुआ है, वो तो खा जाएगा। पर न तो वो शेर की चिंता में है, न तो उसको अजगरों की चिंता है,
वो जो शहद का एक बूंद गिर रहा है ऊपर से, वो सब कुछ भूल गया उसके चक्कर में। बोला ये तो बढ़िया है, शहद की बूंद आ रही है, लटक तो रहा हूं, कोई बात नहीं। तो कहने का तो गुरुजन वर्णन करते हैं कि दिस इज द मटेरियल स्टेट। प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं ये है बद्ध जीव की अवस्था है। वो इस संसार को ही, जड़ानंद को ही आनंद समझ करके उसमें पड़ा रहना चाहता है। उसको कोई चिंता नहीं है। जो सफेद चूहा, काला चूहा, प्रहलाद महाराज कहते हैं ये कौन है? ये दिन है और रात है। और ये शेर और ये अजगर कौन है? दीज आर द कैलेमिटीज। अकाल मृत्यु कभी भी आ सकती है, एक्सीडेंट, कोरोना, क्या क्या हो रहा है संसार में। एनीथिंग कैन कम एनी टाइम। अगर चलो इन्होंने छोड़ भी दिया, आप लटके हुए हो, शहद को चाट भी रहे हो, कोई बात नहीं, मगर एक दिन ये सफेद चूहा, काला चूहा दिन और रात का प्रतीक है। दिन रात होते होते 50 साल, 60 साल, 100 साल में तो टहनी कट के गिरनी ही गिरनी है, मरना तो है ही। सो इंटेलिजेंट पर्सन शुड क्राई लाउडली, शाउट एंड सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हो सकता है कोई व्याग, कोई वहां पर आकर के आपको वहां से बाहर निकाल दे। अवश्य आएंगे गुरुदेव, तो देख रहे हैं किसके हृदय में भावना है इस संसार से निकलने की। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं भले ही भगवान ने हमको इस संसार में डाला, पर गुरु भगवान लेकर के हमको इस संसार से निकाल रहे हैं। तो कौन बड़ा है? ये कृष्ण बड़े हैं या मेरे गुरुदेव बड़े हैं? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज once said, for me, my Gurudev is everything. Because Krishna did not came to take me out from this material world. My Gurudev came for me to take me out of this material world. कृष्ण नहीं आए मुझे यहाँ से निकालने के लिए, मेरे गुरुदेव मुझे निकालने के लिए आए हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव ही भगवान के स्वरूप मेरे लिए भगवान है। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो मिलाए। मैं गुरुदेव की बलिहारी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे कृष्ण मिलाया है। तो ऐसे सदगुरु का शरण आश्रय ग्रहण करना ही परम कल्याण का मार्ग है। और ऐसे गुरुदेव जो है, हम जितने सिंसियर है, जैसे मैंने करदम मुनि की इसलिए कथा सुनी, जितनी सिंसियरिटी हमारे हृदय में है, जितना डुप्लिसिटी नहीं हमारे हृदय में, हम भगवत प्राप्ति के लिए गुरु धारण करना चाहते हैं, तो सदगुरु अवश्य मिलेंगे। अगर हम दोनों रखना चाहते हैं तो चलो ठीक है, ऐसे ही गुरु भी मिल जाएंगे। ठीक है, तुम ये भी करो, वो भी करो। अगर डुप्लिसिटी है, अगर संसार भोग की प्रवृत्ति है, तो ऐसे भी गुरु बहुत सारे संसार में है, जो गुरु तो है नहीं पर गुरु के नाम पे गुरु बने हुए हैं, जो संसार बंधन में ही खुद भी फंसे हुए हैं और शिष्य को भी डुबाने वाले हैं। तो इसलिए गोपू कुमार की इस जर्नी से विशेषकर हम ये सीख रहे हैं कि सदगुरु की कितनी शक्ति है, सदगुरु की कितनी महिमा है, कितनी शक्ति है कि उन्होंने, उनकी कृपा से गोपू कुमार पूरे ब्रह्मांडों को आगे आगे बढ़ रहा है। मैं भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की बात कर रहे थे कि उन्होंने भी कहा कि हम गुरु नहीं बनेंगे। हमारे गुरुदेव भी बोले विनम्रता के कारण इनमें शक्ति है, तो भगवान के नीचे परिकर है, मगर विनम्रता में। तो फाइनली दे एग्रीड, भक्तिवेदांत वामन महाराज विल बिकम द गुरु, ही विल बी डूइंग द इनिशिएशंस एंड नारायण महाराज विल गिव द टीचिंग्स, वो शिक्षा देंगे, सबको शिक्षा प्रदान करेंगे। और त्रिविक्रम महाराज ने कहा मैं सबको शासन करूंगा, आई विल बी लाइक शिवा। कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डांट फटकार करके सीधे लाइन पे लेके आना। इसलिए इनको कहा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ब्रह्मा की तरह सृष्टि कर रहे हैं, गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज विष्णु की तरह पालन कर रहे हैं, भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज सबको, उनके अनर्थों को काट रहे हैं। तो पूरा जीवन इन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा के लिए अर्पण किया, पूरा जीवन उन्होंने मठ सेवा में दिया। हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं, मैं पहली बार जब मठ आया तो त्रिविक्रम महाराज बहुत सबसे सीनियर त्रिविक्रम महाराज ही थे, इन द सेंस मठ में आने वाले। भक्तिवेदांत वामन महाराज के छोटे बच्चे जब थे तभी आए थे, पर बड़े बड़े थे, और इन्होंने ही मेरा पूरा ध्यान रखा, मात्र वात्सल्य दिया, माता के समान मुझे वात्सल्य दिया। और नित्य निरंतर जितने भी भक्त परिक्रमा में आते थे, बहुत वो स्ट्रिक्टली सबको बोलते थे भजन करना, हमको भजन किस प्रकार से करना है। He has served his whole life to Gurudev's mission, and गुरुदेव से बहुत प्रेम करते थे। गुरुदेव से उनकी, गुरुदेव के प्रति चरणों में उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो आज उनका व्यास पूजा है, उनका आविर्भाव तिथि है। आज के दिन हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, कोटि कोटि जो गुरु भक्ति और जो दृढ़ता उनको भगवत नाम में थी, वो हमारे हृदय में भी आए। अपने गुरुदेव के बारे में जब थोड़ा सा भी कुछ वर्णन करे तो बोल नहीं पता, उनके आंखों से अश्रु शुरू हो जाता था।
कितना उनके गुरुदेव के चरणों में उनको श्रद्धा है। और जब भी किसी से भी बात करेंगे तो उनके हृदय से इन अनर्थों को निकालने का ही प्रयास निरंतर करते थे। और कई बार गुरुदेव से भी आप ये गोपी भाव के वचन कहते हैं, बहुत ऊंची बातें वर्णन करते हैं, कई बार उनके पास जाते थे, आप भी महाराज जी बताइए। वो बात है, एक बार उन्होंने बोला, कुछ लोग वक्त आए, हमको भी बताइए इन विषयों के बारे में। उन्होंने बोला, अच्छा कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गया तो सब लोग हंस रहे हैं, कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गया। तो त्रिविक्रम महाराज जी उनको बोलते हैं, अगर अभी आपको कोई बोले आपके घर में कोई मर गया तो ऐसे हंसेंगे, हंसी आएगी? अगर सही में कोई मर जाए, किसी का भाई बंधु भाई बेटा कोई भी, तो जब आपको भगवान के प्रति कोई प्रीति ही नहीं है तो क्या करोगे फिर सुन करके? कैसे उस भाव को प्राप्त करेंगे? इसलिए पहले कथा के माध्यम से भगवान के चरणों में प्रीति धारण करो। प्रीति धारण के जब आपको प्रेम होगा तब उनका विरह सहा नहीं जाएगा, उस विरह जब सहा नहीं जाएगा तभी उस भाव को प्राप्त किया जा सकता है। अभी वो विरह की भावना ही नहीं हृदय में। तो इस प्रकार से कई भक्तों को, और उन गुरुदेव के साथ कई बार वो कहते हैं मैं कृष्ण पक्षी हूँ, आप राधा पक्षी में, जस्ट गुरुदेव का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं कृष्ण पक्षी हूँ। तो इस प्रकार से वो कथा बोलते थे। तो anyone want to add anything else on Trivikram Maharaj? Anyone has any more points to add? Please feel free. अगर कुछ भक्त बोलना चाहते हैं, कुछ anything, any other point, वृंदावन प्रभु या I think बाकी भक्त लोग तो कोई ज्यादा जान। 1 minute, just 1 minute, I'm back. Okay, so I'm back. Any questions so far on Guru Tattva? कोई प्रश्न किसी का, कोई दुविधा इस टॉपिक के ऊपर? एनीथिंग टू आस्क, एनीथिंग टू क्लेरिफाई बिफोर वी मूव फर्दर? ओके, तो हम बृहद भागवतामृत के कुछ श्लोकों को आज और अध्ययन करेंगे। लेट अस रीड डायरेक्टली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नाउ दीदी, मुझे थोड़ा सा मतलब बीच में थोड़ा सा मिस हुआ शायद, तो मुझे समझ नहीं आया वो। आपने बताया था जैसे उनको मंत्र मिला था और वो उनका मंत्र अभ्यास करते हैं और उसके बाद वो उनकी शायद मृत्यु हो जाती है कुछ। नहीं उसके मंत्र, आगे का मंत्र अभ्यास का मैं बता रहा था, मंत्र की कितनी शक्ति है। हाँ, मंत्र में कितना शक्ति है उसका मैं वर्णन कर रहा था कि जब सदगुरु जब मंत्र देते हैं, जब सदगुरु मंत्र प्रदान करते हैं तो उस मंत्र में उतनी शक्ति है कि वो हमको भगवत धाम तक लेके जा सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण, एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स शास्त्रों में है। हमारे शास्त्र में तो बोलेंगे नहीं, भक्तमाल जैसी कथाओं में हमारे गुरु वैष्णव से जब हम सुनते हैं कि इवन अगर किसी कारण से कोई सदगुरु का आश्रित शिष्य अगर किसी कारण से भक्ति से छूट भी जाता है तो फिर भी गुरुदेव उसको नहीं छोड़ते। इवन अगर वो नरक लोक भी चला जाए वहां से भी उसको उठा के लेके आते। इतना मंत्र का, ये सदगुरु में शक्ति। इसलिए गोविंद गोसाई महाराज यूज्ड टू से many times not to force or put any external point, not to criticize. He said gurus does not get manufactured in GBC meetings. It was his one statement. कोई व्यक्ति गुरु को प्रकट नहीं कर सकता, कोई मीटिंग में लेकर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता है। किसी ने हजारों लोगों को शिष्य बना दिया तो वो गुरु हो गया, किसी में बहुत सारा उसके यहाँ पर कोई सिद्धियां विधियां है, कोई छू मंत्र कर रहा है, कोई ऐसा गुरु नहीं होते। गुरु शब्द का अर्थ गुरुदेव वही बन सकता है, गुरु वही बन सकता है जो आपको भवसागर से निकाल सके। उस व्यक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं इस जीव को भवसागर से निकाल सकता हूँ, भगवत धाम इनको दिला सकता हूँ, वही सदगुरु है। अगर उसमें ऐसी शक्ति नहीं, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है तो उसको गुरुदेव बनना नहीं, गुरु का रोल ही नहीं करना चाहिए। वो साधन भजन करे अपना,
साधन भजन करे अपना। अगर वो राधा दास्यम प्रदान नहीं कर सकते हैं, अगर वो ब्रिज रसिक वैष्णव नहीं है, तो वो ब्रिज रस को प्रदान नहीं कर सकते। जितना उनके पास शक्ति है उतना ही हमको प्रदान कर सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे सदगुरु, हम गुरु वैष्णव के चरण आश्रय ग्रहण करते हैं, और जब फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनकी कृपा से ही, क्योंकि चाहे कनिष्ठ गुरु हो, चाहे मध्यम गुरु हो, चाहे उत्तम गुरु हो, उनकी कृपा से ही वही हमको फिर रास्ता दिखाते हैं कि आगे आप तत्व तो गुरुदेव का नित्यानंद अखंड तत्व है, ये एक तत्व है, ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। Guru is not only a person, it is physically, don't limit Gurudev to a physical body, just try to understand this point. गुरु एक तत्व है, मैं पिछली बार बताया था, जिस प्रकार से पानी एक तत्व है, जल एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है, वायु एक तत्व है, ये तत्व है। और इधर का जल उधर का जल अलग अलग नहीं है, उसमें सब में दोनों में एक ही गुण है। चाहे आप कर्नाटका से कावेरी का जल ले, या गंगा का जल ले, या गोदावरी का ले, या कोई कुएं का ले, या किसी तालाब का ले, जल में जल तत्व से उसका 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 कैरेक्टरिस्टिक इट इज लिक्विड, उसके तत्व से उसमें सब सेम ही चीज रहेगी। अग्नि चाहे यहाँ पर रहे, आपने घर में जलाए, अग्नि कहीं पे लगाए, उसका काम, उसका ऑब्जेक्टिव है भस्म कर देना, राख कर देना, वो अपना कार्य करेगा, तत्व है वो एक अग्नि, आकाश, जल। उस प्रकार गुरुदेव भी नित्यानंद अखंड गुरु तत्व कहा गया है, नॉट जस्ट ए पर्सन। वो तत्व किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी कृपा के रूप, कृष्ण कृपा की मूर्ति के रूप में प्रकाशित हो जाएगा। मे बी ही बिकम दैट गुरु तत्व मैनिफेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नित्यानंद प्रभु, or it manifests in the form of Bhaktivedanta Swami Prabhupada, or it can manifest in the form of Bhaktivinoda Narayan Goswami Maharaj, or true Vaishnavas जो उस गुरु तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। कई सारे हमारे अभी भी आचार्यगण, श्रीधर महाराज जी, वामन महाराज जी, बाबा महाराज जी, राधानाथ महाराज, I mean there are so many who have taken that role of guru, and उनके अंदर वही नित्यानंद प्रभु की वो एक रे है। बट व्हेन, जब सदगुरु जानते हैं कि भाई अभी मेरा अधिकार यहाँ तक है इस जीव को कल्याण करने के लिए, इसके आगे उत्तम वैष्णव, रसिक वैष्णव इनका कल्याण करेंगे, तो उनके चरण आश्रित उनको कर देते हैं। सो इट इज द सेम गुरु हियर, सेम गुरु देयर, सेम, I mean same water is everywhere, same fire is everywhere. Don't just limit it to a body. जब हम इसको किसी एक पर्टिकुलर शरीर से सीमित कर देते हैं तो फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो दूसरे संप्रदाय का गुरु है, तो इस संप्रदाय का गुरु है, तो मेरा मठ का गुरु है, तो उस मठ का गुरु है। ऐसे विचार, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पर नए हैं तब इतना हमको नहीं बुझते हैं, मगर when we become little old then we think on those lines. So it is always to be very careful कि गुरु जो है किसी एक विशेष शरीर में नहीं है, उस शरीर के माध्यम से भले ही हाँ उनके उस शरीर के प्रति, उस गुरुदेव के प्रति हमारी एक विशेष श्रद्धा रहती है, रहनी चाहिए, परंतु हमको साथ साथ ये भी समझना है कि ये केवल एक, इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी, ये एक तत्व सिद्धांत का विचार है। तो वैसे सदगुरु जीव का कल्याण करने के लिए नित्य निरंतर रहते हैं। अभी हम देखेंगे गोप कुमार के इस अध्याय में हम देखेंगे हाउ हिज गुरु मंत्रा इज हेल्पिंग हिम इन एवरी स्टेज। तो आज हम थोड़ा सा कुछ श्लोक आगे पढ़ेंगे, उसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें कुछ और विचार तुम्हारे चाहेगा तो हम उसको भी आगे पढ़ेंगे। So we'll just today directly go to these shlokas. Anyone want to start reading shlok number 90? हमने पिछली बार पढ़ा था, but we can repeat it. Maybe the shlok अनुवाद is also good enough if it is visible properly in your screen. अगर ठीक से दिख रहा है तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में आप पढ़ने का प्रयास करें। कहते हैं, जब उसने घोर अंधकार युक्त वन में किसी को नहीं देखा, तब उसने रोने की ध्वनि का स्थान निर्धारण किया तथा उस स्थान की ओर गमन करते करते यमुना तट पर जा पहुंचा। अभी उस ब्राह्मण की बात चल रही है, जो ब्राह्मण कहां से आया था? एनीवन रिमेंबर वो ब्राह्मण कहां से आया था जो भी वृंदावन पहुंच गया है? Where did he started his journey? आसाम से आया था। असम गुवाहाटी के यहाँ क्षेत्र से आकर के फाइनली उन्होंने प्रयाग, काशी, मथुरा विश्राम घाट में स्नान आदि करने के बाद वह वृंदावन आया। वृंदावन में उसने चारों ओर गायें देखी, गोपाल देखे, अर्थात ग्वाल बाल देखे, जो वृंदावन में नित्य निरंतर आप जाएंगे तो विशेषकर अभी तो थोड़ा सा वृंदावन से बाहर गोवर्धन की ओर जाएंगे या थोड़ा जो बरसाना नंदगांव की ओर देखेंगे तो चारों ओर गाय गोपाल ही सब दिखेंगे। इस प्रकार से कहते हैं उसने थोड़ी देर जब देखा और जब मंत्र जप कर रहा था, जो गुरु मंत्र उनको मिला था, जो गोपाल मंत्र उनको मिला था, जो माता
कात्यायनी ने उनको दिया, माता कामाक्षा ने उनको दिया था, उस मंत्र के प्रभाव से उनके हृदय में उसकी स्फूर्ति होने लगी थी। इसलिए गुरु मंत्र का प्रभाव, अगर गुरु मंत्र के जप करने से स्फूर्ति नहीं हो रही है, मतलब देयर इज सम गड़बड़, और गुरु मंत्र अगर लिया ही नहीं है तो फिर बहुत और भी गड़बड़ है। इसलिए गुरुदेव से गुरु मंत्र लेना फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति के। अगेन आई एम कम टू गुरु तत्व बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट। भक्ति के 64 अंगों में पहले 3 अंग है गुरु पदाश्रय, गुरु को स्वीकार करो, उनसे मंत्र ग्रहण करो और उनकी आज्ञा पे चलना। दिस फर्स्ट 3 स्टेप्स, गुरु पदाश्रय, गुरु से मंत्र ग्रहण करना। तो अगर हम बोलेंगे हरिनाम करना, हरिनाम की महत्वता बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिनाम इज जस्ट एवरीथिंग, हरे कृष्ण महामंत्र इज एवरीथिंग, चैंटिंग का महामंत्र एवरीथिंग। गुरुदेव कहते थे ये हरिनाम जो है, ये समझो आप किस प्रकार से है, आपने और एग्जाम्पल समझो कि खिचड़ी बनानी है, गुरुदेव ऐसा एग्जाम्पल, आपने खिचड़ी बनानी है, आप खिचड़ी की विशेष सामग्री ही जो है वो है अन्न, मे बी राइस, दाल, तेल, बाकी सब मसाले। So this is like Harinam. Now you have rice, you have water, you have everything, all the ingredients to make a खिचड़ी। But इन सबको मिलाने से खिचड़ी बन जाएगी क्या? पानी डाल दिया, दाल डाल दिया, चावल डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, खिचड़ी बन गई क्या? इसको खिचड़ी बोलेंगे? Anyone? क्या सभी चीजों को मिक्स करने से खिचड़ी बन जाएगी? नहीं, पकाएंगे पहले। पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए क्या चाहिए? पकाने के लिए आग चाहिए, अग्नि चाहिए। वेरी नाइस। तो दिस अग्नि इज दिस मंत्र। ये अग्नि, ये मंत्र है। ये दीक्षा मंत्र जो मिलते हैं, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, काम गायत्री, गोपाल मंत्र, ये सब जो कार्य करते हैं, ब्रह्म गायत्री, जब दीक्षा हम गुरुजनों से लेते हैं तो ये अग्नि का काम करते हैं। तो तब तक आपने कितना भी हरिनाम इकट्ठा, कितना भी आपने चावल इकट्ठा कर लिया, दाल इकट्ठा कर लिया, तेल इकट्ठा कर लिया, मसाले इकट्ठा कर लिए, और ये बना नहीं है भाई। बना नहीं तो आप खा नहीं सकते, खा नहीं तो आपका स्वादन नहीं कर सकते। इसे सनातन गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ को सही में हम समझ सकते हैं, वी आर कलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बट इसका स्वादन करने के लिए, इस ग्रंथ के रस को स्वादन करने के लिए गुरु उस मंत्र से दीक्षित होने का ही आवश्यकता है। Then you will get realization of this topic. गोप कुमार की जर्नी जो हो रही है, not only गोप कुमार is doing, you will be also doing that journey inside your heart, through your mind, and you will be always also crossing those planets. क्योंकि मैंने जब इस ग्रंथ को गुरुदेव से सुना, तब मैंने भी दीक्षा मंत्र नहीं लिया था। ऑल्दो हरिनाम में 10-12 साल से कर रहा था, 1992 से लेकर 2002 तक, लगभग 10 साल से मैं गुरु मंत्र कर रहा था। और इन तत्वों को सुनने में तो बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था, बड़े आनंद आता था, और राधा दास्यम बोलने में भी बड़ा आनंद आता था। राधा दास्यम करना चाहिए, पर राधा दास्यम ही क्यों भाई? Why not Krishna Sakha? Why not like Krishna only being in his abode? I am sure 90% of us today also think it is better to become Krishna in Golok Vrindavan Dham than becoming the maid servant of Srimati Radha Rani. क्योंकि उस चीज की अनुभूति नहीं है। वो मंजरी स्वरूप में कितना आनंद है। जिस प्रकार फूल की मंजरियां होती है, मंजरियों को जब भंवरा टच करता है फूल को, तो मंजरियां खुद ब खुद खिलने लग जाती है। गुरुदेव ऐसा वर्णन करते हैं। जैसे फूल में जो मंजरियां होती है, जो छोटे छोटे, तुलसी में आपने देखी, जो तुलसी मंजरी कहते हैं, या फूल के जो बाकी सब टहनी में जब फूलने लगती है, तो राधा कृष्ण के संगम से, उनके रास में, उनके लीलाओं के साथ जब, तो मंजरियों को इतना उनका प्रतिष्ठा है कि इवन सखियों से भी अधिक उनको प्रवेश है रास में। Although they never have a desire to be with Krishna in secluded place or having any ras, but their only desire is to make sure they serve Radha Govind together. तो पर इस चीज को समझना फिर भी हो सकता है समझ आए, मगर अनुभूति करना तब तक नहीं होगा जब तक उस गुरु मंत्र। तो कहते हैं इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस व्हेन वी कम गो प्रोग्रेस फर्दर, वी मस्ट प्रे इन आवर हार्ट, चेत गुरु प्लीज लेट मी गेट सम प्योर डिवोटी। आप मुझे अपना शुद्ध भक्त भेजिए जो मुझे मंत्र प्रदान कर सके, जिस मंत्र के प्रभाव से ऐसे सदगुरु प्रदान करें जो मुझे इस भवसागर से निकाले। जब मैं इस शरीर को छोड़ूं, मैं दोबारा इस चक्कर में न पड़ करके उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए इस मंत्र का प्रभाव, कहते हैं वो जब मंत्र जप कर रहे थे गोप कुमार, अपना गोपाल मंत्र जो हम सबको मिलता है दीक्षा के समय,
तो वह हृदय में देख पा रहे थे कुछ लीलाओं की स्फूर्ति, और बाहर वो देख रहे हैं किस प्रकार से उस जगह पर कई सारे ग्वालबाल इस प्रकार घूम रहे हैं। और फिर क्योंकि अंधकार है, वृंदावन आ गए हैं चारों ओर, जब संध्या समय हो गया तो उसने देखा कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जो पिछली बार भी हमने सुना। उस रोने की आवाज कहाँ से आ रही इस जंगल में? वो धीरे धीरे केशी घाट की ओर बढ़ते गए। उस ब्राह्मण ने यमुना के तट पर कदम्ब के कुंज में अति सुकुमार अंगों वाले गोप वेश धारण किए हुए एक सुंदर किशोर मूर्ति गोप कुमार का दर्शन। अब ये ढूंढ रहे हैं कहाँ है, तो देख रहे किसी कुटिया में केशी घाट के पास अंदर कोई गोप कुमार बैठा है। गोप कुमार क्यों वर्णन किया गया? सनातन गोस्वामीपाद लिखते हैं क्योंकि उनका वेशभूषा जो थी वो गोप कुमार जैसी थी, अर्थात वो एक ग्वाले की तरह था। उसने भी मोर पंख धारण किया हुआ था, उसने भी एक वंशी रखी हुई थी, उसने बगल में एक जो हॉर्न, बफेलो हॉर्न होता उसको रखा हुआ था। उस यमुना के तट पर उपस्थित होकर वहां उस संकीर्तनकारी को देखा। वो संकीर्तनकारी किस प्रकार का था? उसका वेश गोपाल की भांति था, अर्थात मयूर पिछ वेणु श्रृंग वस्त्र आदि युक्त होकर सुंदर अंगों वाला किशोर मूर्ति गोपाल था। अब इसको ब्राह्मण को लगा कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि उन्होंने भी वैसे ही वेशभूषा धारण की थी। और जब हृदय में वो अपने देख रहे हैं कि किस प्रकार से मदन गोपाल की जब उनकी अनुभूति थोड़ी होने लगती है, उनको लगता है मेरा मदन गोपाल ही है, तो जोर जोर से कहते हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनको पुकार रहे हैं। और ये अंदर जो गोप कुमार बैठे हैं, उन्होंने वो तो रोदन करते करते मूर्छित हो गए थे। कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा खुली, क्योंकि हम हरिनाम करते करते, मंत्र जप करते, भगवत नाम में गुरु वैष्णव जब प्रविष्ट हो जाते हैं तो बाहर का कुछ सुध नहीं रहती है। और जब उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि कोई बाहर पुकार रहा है, तो तब क्या हुआ? तब वो वहां से खड़े होकर के बाहर आए। वो समझ गए थे, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो समझ गए माता कामाक्षा की कृपा से ये व्यक्ति जो है यहाँ पर आया हुआ है, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी मथुरा का ही एक ब्राह्मण है जो गुवाहाटी पहुंच गया था और वहां पर अपना जॉब आदि करता था। वो सब इनके भूत वर्तमान भविष्य जान गया, क्योंकि गुरु सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, उनको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, सामने वाला बोलेगा, हृदय को प्रकट करेगा तो बीमारी को ठीक कर देंगे, नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे ठीक है, जब तक तुमको रखना रखो बीमारी। तो उसके बाद क्या हुआ? एनीवन वांट टू रीड दिस? श्लोक अनुवाद नंबर 19। सर्वप्रथम गोप कुमार ने उस विप्र को यथायोग्य आतिथ्य द्वारा संतुष्ट किया। तत्पश्चात अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराने के लिए उस ब्राह्मण ने जो जो अनुभव किया था उनमें से कुछ वृत्तांत मुस्कुराते हुए उसे सुनाए। अब ये गोप कुमार उस जो ब्राह्मण आया हुआ उसको संतुष्ट कर रहा है और कुछ बता रहे हैं। उनको क्या बता रहे हैं आगे पढ़े। एक एक श्लोक सब लोग पढ़ेंगे। 19 devotees, 18 devotees, 18 shlokas quickly we will read and then we will try to close today's session. Anyone? ब्राह्मण ने उस गोप कुमार को अपना सुहृद जानकर अत्यधिक आनंद अनुभव किया और विश्वास पूर्वक अपना समस्त वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। अपना सुहृद जान करके उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सब कुछ बता दिया, मैं कैसे आया, क्या हुआ। फिर क्या हुआ आगे? फिर वो विप्र गोप कुमार को ओके प्रभु जी। फिर वो विप्र गोप कुमार को साधु श्रेष्ठ सर्वज्ञ वर जानकर विनय तथा दीनता पूर्वक इस प्रकार कहने लगा। अब गोप कुमार उनको क्या कह रहा है? श्री ब्राह्मण वाचो। अभी ब्राह्मण क्या वर्णन कर रहे हैं? मे बी नेक्स्ट। ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा तीर, गढ़ा तीर और काशी आदि स्थानों पर बहुत प्रकार के साध्य साधने के संबंध में श्रवण कर भी अभी तक यह निश्चय नहीं कर पाया कि मेरा साध्य क्या है और उसका साधन क्या है। बहुत बढ़िया। शिवानी दीदी आप अभी पढ़िए, क्योंकि आपकी आवाज लेट आई थी, अभी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट शिवानी दीदी पढ़ेंगे? उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं पढ़िए।
मैं उस देवी के आदेश से प्रतिदिन जो अनुष्ठान कर रहा हूँ वह क्या है और उसके करने से क्या फल होगा, मैं यह भी नहीं जानता हूँ। तो अभी वो ब्राह्मण कुमार बता रहे हैं गोप कुमार को, मैंने कई जगह पर कई सारी चीजें देखी, मैंने उन सन्यासियों के साथ भी रहा जो नित्य निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो अखंड जो मंडलाकारम एक दंड सन्यासी थे, उनके साथ रहा। वो वैदिक पुराणों का अनुष्ठान करते, गंगा आदि में स्नान करना, रोज उठना बैठना, ये उनका जीवन था। फिर मैंने प्रयाग में उन भक्तों को भी देखा जो नित्य निरंतर कीर्तन आदि करते थे। फिर अब मैं यहाँ पर भी आकर के देखता हूँ, अब मैं ये नहीं जानता कि सही में साधन साध्य वस्तु क्या है, व्हाट इज द गोल, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल गोल। फिर आगे पढ़िए। इसीलिए मैं अपने इस जन्म को निष्फल मानते हुए मरने की इच्छा करता हूँ, परंतु केवल श्री विश्वनाथ और भगवान श्री माधव देव की कृपा से जीवन धारण कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं अब मुझे, आई एम टू मच कंफ्यूज्ड, आई हैव सीन सो मेनी प्रोसेसेस, आई हैव सीन सो मेनी प्रोसेसेस, आई डोंट वांट इवन टू लिव। मगर विश्वनाथ भगवान अर्थात जो शिव जी को उन्होंने देखा और माता पार्वती को देखा, उन्होंने आज्ञा दी इस मंत्र का जप करो, इसलिए मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ और इसीलिए मैं अभी तक जीवित हूँ। पर ना, आई एम नॉट श्योर व्हाई आई शुड लिव आल्सो, बिकॉज देयर इज सम नाइस थिंग हैपनिंग इन माय हार्ट, आई एम लिविंग, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द गोल। नेक्स्ट। उन्हीं की कृपा से आज मैं अपने इष्ट देव के समान आपको पाकर परम आनंदित हुआ हूँ। आप सर्वज्ञ और दयालु है तथा मैं अति दीनहीन हूँ, अतः कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। अभी उनको बता रहे हैं कि मेरा उद्धार कीजिए, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। और परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, आगे पढ़िए। श्री परीक्षित जी ने कहा, हे माता, गोप कुमार उस ब्राह्मण के वाक्यों को आदर सहित सुनकर मन ही मन यह विचार करने लगा कि यह ब्राह्मण कृतार्थ हो चुका है तथा इसका मनोरथ भी पूर्ण हो गया है। तो गोप कुमार ने जब उनको सुना कि उसमें इतनी तीव्र इच्छा है भगवत प्राप्ति करने की, तो समझ गया है कि इसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, अब इसका कल्याण करना का समय आ गया है। उसके बाद क्या हुआ? अब तो इसको केवल श्री मदन गोपाल के चरण कमलों के साक्षात दर्शन प्राप्त करना ही बाकी है। अतः अब इसको मंत्र जप में आसक्ति की विशेष आवश्यकता नहीं है, बल्कि श्री नाम संकीर्तन में ही इसकी आसक्ति होना उचित है। गोप कुमार बताते हैं अब नेक्स्ट इसको क्या होना चाहिए, इसको मंत्र आदि जपने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर जो मंत्र वहां पर जप रहे थे अलग अलग स्थानों पर, अब तो इसको नाम संकीर्तन में प्रवेश होना चाहिए। इस प्रकार एनीवन वांट टू रीड दिस वन? नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त उपासना ही श्री मदन गोपाल के चरणों की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। यह नाम संकीर्तन आदर सहित अनुष्ठित होने पर यच्छा से अति फल प्रदान करने वाला है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे अधिक फल ये नाम संकीर्तन प्रदान करने वाला है, और ये उस व्यक्ति के लिए है जिसका मंत्र का अभिष्ट पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से ओके, वी कैन रीड दिस वन आल्सो। श्री मदन गोपाल की लीला सतली योग के प्रति श्रद्धा और उनका दर्शन आदि जो कुछ भी साधन है उसको आदर सहित नाम संकीर्तन से युक्त करने से ही ऐसा साध्य प्राप्त किया जा सकता है। अतएव श्री नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ अन्य कोई भी साधन नहीं है। तो भी गोप कुमार बोल रहे हैं, इन्होंने क्योंकि पूर्ण रूप से अपने इष्ट को हृदय में वो धारण कर रहे हैं, अब इनको किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। अब ये नाम संकीर्तन के प्रभाव से अपने अभिष्ट मदन गोपाल के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अभी उनकी ऐसी साधन भजन करते करते हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जिसके लिए 90% लोग भाग रहे हैं, धर्म के लिए,
धर्म करेंगे किसके लिए? अर्थ के लिए, धन कमाएंगे। अर्थ से क्या होगा? काम की पूर्ति होगी, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरा करेंगे। सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरा हो गया तो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति प्राप्ति के लिए अभिलाषा करेंगे। कहते हैं इन चतुर्वर्गीय तुच्छ, ये सब चीजें भी तुच्छ प्रतीत हो रही है। जो नाम संकीर्तन में, जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए तुच्छ प्रतीत होती है। इसलिए इनको अभी क्या चाहिए? इनको अभी चाहिए कि इसके ऊपर जो मदन गोपाल की जो भक्ति है, ऐसी उपासना ही श्री मदन गोपाल को वशीभूत किया जा सकता है। इसलिए इस उपासना वशीकरण के समान, अतएव ऐसे उपासना को श्रेष्ठ अन्य कोई साध्य नहीं है। मदन गोपाल या मदन मोहन या राधा गोविंद की उपासना करने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसे समझने के लिए इस ब्राह्मण में सर्वप्रथम अपने जीवन की संपूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। मेरा वृत्तांत सुनकर ही इसका समस्त प्रकार का संशय दूर हो जाएगा। अब ये संशित है, इसको ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, उन सन्यासियों के पास रहना चाहिए था। मगर भगवान विश्वनाथ माता की कृपा से जो मंत्र मिला, उस मंत्र के प्रभाव से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है और उनकी आज्ञा है, इसलिए उसका पालन कर रहे थे। तो अब कहते हैं अब मैं आपके पास आ गया और आप मुझे कृपा करके बताइए। अब ये गोप कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भी भगवत धाम के निवासी है, भगवत नाम से पूर्ण रूप से इनकी अनुभूति है। कहते हैं अब मैं इनको अपने जीवन का ही वृत्तांत सुनाऊंगा। आई विल टेल हिज माय ओन स्टोरी अबाउट मी, हाउ आई अटेन्ड दिस स्पिरिचुअल परफेक्शन। और वो फिर आगे बताते हैं उनको कि किस प्रकार से इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य किसी प्रकार के संसारिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं है। इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। वो बताते हैं यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से करना साधुता रहित नहीं, कि मैं अपनी प्रशंसा करूंगा, अपनी स्टोरी बताऊंगा तो ऐसा लग सकता है कि ये अपना ही गुणगान कर अपनी ही बड़ाई कर रहा है। परंतु ब्राह्मण को अपने महपूर्ण वृत्तांत तो सुनाऊंगा, क्योंकि अन्य किसी भी आख्यान से इसका उपकार नहीं होगा। कहते आई विल टेल माई प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैंने खुद क्या अनुभूति की है, मैंने खुद किस चीज को प्राप्त किया है। भले ही ऐसा लगे कि मैं अपना बड़ा चढ़ा रहा हूं, परंतु इससे बढ़िया कोई इस ब्राह्मण के लिए समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार निश्चय करके वह महानुभाव गोप कुमार उस ब्राह्मण को मनोयोग का आकर्षण अपने द्वारा अनुभव किया। वृत्तांत इस प्रकार से कहने लगे जैसे पुराण को वक्ता ऋषि पुराणों का वर्णन करते हैं। तो उन्होंने उनको अपने जीवन का वृत्तांत बताना शुरू किया। गोप कुमार ने कहा यदि इस विषय में बहुत से इतिहास है, तथापि मैं अपना वृत्तांत ही वर्णन कर रहा हूं। उसमें से कुछ स्वाभाविक रूप से अनुभव हुआ, उसको तो कहूंगा ही, किंतु जो समस्त विषय मूर्छित का अवस्था घटित हुए थे, उन सब का विषय में भी स्मरण कर कहूंगा। कहते मैंने जीवन में जो कुछ भी हुआ वो तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, परंतु जिस अवस्था में मैं मूर्छित हो गया था, मैं क्यों मूर्छित हो गया, जब आपने मुझे देखा कि मैं बेहोश होकर यहाँ पे गिर पड़ा था, मैं क्यों बेहोश था, मैं क्यों मूर्छित हो गया, कब मूर्छित हुआ, क्यों मूर्छित हुआ, उन अवस्थाओं के बारे में भी कहूंगा। हे विप्रवर, फिर अपनी उन्होंने कहानी शुरू की बोलने के लिए कि मैं गोवर्धन का रहने वाला गोपालन में निरंतर किसी एक वैश्य गोपुत्र हूँ। अपनी स्टोरी भी बता रहे हैं गोप कुमार उनको। कहते मैं अपनी स्टोरी बताएंगे कि मैं एक गोवर्धन में रहता था। ये कब रहते थे, कौन से जन्म की बात है, वो आगे आगे समझेंगे। कहते मैं गोप कुमार, मैं गोवर्धन में रहता था और गोवर्धन में रहते हुए मैंने गाय चराता था। और हम सब, छोटा सा लड़का था मैं, जैसे अभी कभी वृंदावन जाएंगे तो बहुत सारे ग्वाल वाल आपको वहां मिलेंगे, आपके पीछे पड़ेंगे, मुझे बिस्कुट दे दो या कुछ दे दो। You will sometimes feel अरे ये कौन है, but they have already they have some natural love for Krishna and you never know when Krishna और some गोप कुमार के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो इवन विशेषकर जब गांव में दूर दूर जाते हैं, बस लठिया लेकर के गाय चरा रहे होते हैं, तो कहते हैं गोप कुमार मैं भी ऐसे ही गोवर्धन में मैं गोवर्धन में पैदा हुआ था, गोवर्धन में मेरा जन्म हुआ और मैं गाय चराता रहता था। और बाल्यकाल से ही मुझे ज्यादा लोगों से उठना बैठना पसंद नहीं था। मुझे ज्यादा, जैसे बहुत लोगों को इच्छा होती है ना संसार में, पार्टियां करना, ये करना, यहाँ जाना वहां जाना, मुझे इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो जब बाकी सारे बच्चे लोग खेलते थे मैं भी उनके साथ खेलता था, पर वहां पर उस वन में जहां पर हम गाय चराते थे वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण जो है बड़ा ही दिव्य था। वो ब्राह्मण इतना दिव्य था कि वो नित्य निरंतर नाम संकीर्तन करते हुए कभी जमीन पे
बेहोश पड़ा रहता था, और कभी उनकी आंखों से अश्रु का विसर्जन हो रहा होता था, कभी भूमि पे लोटपोट होते रहते थे। और फिर मैं क्या करता, क्योंकि मैं गोपाल था, मैं गाय चराता था, मैं कभी कभार उनके लिए दूध लेके जाता था। वो जब अचेतन पड़े रहते थे तो मैं उनको उठाता था, उनको बिठाता था, बाबा बाबा क्या हुआ, क्यों ऐसे रो रहे हो, कि मैं समझता नहीं था वो क्या कर रहा था। पर बालक होने के कारण कौतूहल वह सदा उनका दर्शन करने के लिए जाता, किंतु वो गोपाल गोप बालक जानकर हम लोगों को भक्ति से नमस्कार करते। तो वो ब्राह्मण जो जो जिसके बारे में वर्णन करते, अपने गुरु के बारे में वर्णन कर रहे हैं गोप कुमार अभी, कहते वो उस ब्राह्मण को जब हम देखते थे तो वो हमको नमस्कार करते थे, क्योंकि वो हमको समझते थे गोपाल है, यहाँ के ग्वाले हैं तो ये कृष्ण ही है। तो परंतु क्योंकि उनको स्नेह था हमारे प्रति, कभी कभार तो क्या वो हमारा आलिंगन कर लेते थे, हम सब ग्वाल बालों का कृष्ण कृष्ण कर करके हमको गले से लगा देते थे, हमारा चुंबन करते थे। हम लोगों के प्रति बंधुओं की बातें जानकर सहसा परित्याग करने में असमर्थ हो जाते थे। कभी कभार जब हमारे साथ बैठते थे, हमारा आलिंगन करते थे, तो हमको छोड़ नहीं पाते थे, कृष्ण कृष्ण करते करते हमारे को पकड़ के ही बैठे रहते थे। कहते मैं दुग्ध आदि देकर उनकी सेवा करता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रेम प्रदान करे। तो ये ग्वाला कह रहा है, गोप कुमार कह रहे, मुझे भी कोई भक्ति से कोई इतना वो नहीं था, परंतु मैं उनकी प्रेम को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए, मैं उनको वात्सल्य भाव में रहते हुए उनके लिए कभी कभार दूध लेके जाता था। यदि तुम समस्त प्रकार की, फिर उन्होंने कहा, पता नहीं उनको क्या लगा, वाई ही टोल्ड मी, गोप कुमार इज एक्सप्लेनिंग इन टीका, कि उनको पता नहीं क्या लगा, मैं तो बस अपना गाय चरा था, वात्सल्य के मैं कभी कभार उनको दूध दे देता था। पर एक दिन उन्होंने मुझे बोला, बेटा यदि तुम समस्त प्रकार की अभिष्ट सिद्धि चाहते हो तो तुम केशी घाट जाकर स्नान कर मुझसे श्री जगदीश के प्रसाद ग्रहण करो। अब वो अहेतु कृपा जिसको कहते हैं ना, ये अहेतु कृपा वो गोपाल वो ब्राह्मण इस गोप कुमार पर कर रहे हैं कि तुम्हारे को अगर सही में कुछ बढ़िया चाहिए, कुछ सिद्धि चाहिए, तुम रियली यू वांट टू बिकम सक्सेस, देन गो टेक बाथ इन केशी घाट एंड कम टू मी। तो उस समय कहते उन ब्राह्मण की समस्त कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी और उनके किसी भी विषय की आकांक्षा नहीं थी, परंतु दयालु शिरोमणि होने के कारण उन्होंने मेरे स्नान करने के पश्चात मुझे उसी मंत्र का उपदेश दिया जो मंत्र तुम्हारा है। तो तुम्हारे पास जो मंत्र है, गोप कुमार अभी जानते हैं कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, गोपाल मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कहते उस ब्राह्मण ने मुझे वही मंत्र दिया जो मंत्र आपके पास है, किंतु जैसे ही उन्होंने मुझे इस मंत्र की पूजा विधि की दीक्षा देने के लिए जब काल में देय ज्ञान के संबंध में बताने आरंभ किया, उसी क्षण वो आतुर विहारण के बांधते प्रेम रोते रोते मूर्छित हो गए। अब मंत्र दे दिया उन्होंने गोप कुमार को, उस ब्राह्मण ने बोला ये मंत्र का जप करो, और गोप कुमार कह रहे हैं मंत्र देने के बाद अब इस मंत्र को कैसे करना है, क्या विधि विधान है, कितने बार करना है, कब करना है, क्या आचमन करनी है, मन में किसका ध्यान करना है, इस मंत्र का देवता कौन है, इस मंत्र का प्रभाव क्या होगा। बोले ये सब बोलने से पहले ही वो मूर्छित हो गए। When he gave me mantra, suddenly something came in his mind and he lost his consciousness. अब मैं जब थोड़ा सा मैं भी वहां बैठा बैठा इंतजार थोड़ा कर रहा हूं कि इनको होश आएगा, इसके पश्चात जब उनको होश आया तो भय के कारण उनसे और कुछ भी न पूछ सका, तो वो उठकर उदास चित्त कहीं चले गए। उसके बाद मुझे उनका दर्शन ही नहीं हुआ। गोप कुमार कहते हैं मंत्र दे दिया और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद अब जब उनको वापस होश आया तो मैं डर गया था, मैं सोचा मैं इनसे क्या बोलूं, ये इतनी देर बेहोश हुआ पड़ा था, पता नहीं क्या हुआ इनको। वो वहां से खड़े हुए, मुझे लगा खड़ा होकर बाहर जाके फिर से आ जाएंगे, वो वापस आए ही नहीं, वो वापस आए ही नहीं। परंतु मैंने जो मंत्र लिया था, मैंने उस मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया, उसका मंत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। तो अभी समय हो गया है। उस मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, गुरुदेव ने तो केवल मंत्र दिया, न मंत्र का अर्थ बताया, न मंत्र पढ़ने की विधि बताई, और न ही मंत्र का अभिष्ठाता देवता बताया क्या है। बस ये मंत्र दे दिया, ये मंत्र में प्रारंभ करना जप करना प्रारंभ किया। अब इस मंत्र के प्रभाव से आगे आगे क्या होता है, ये गोप कुमार अपनी जर्नी से इस मंत्र की शक्ति और इस मंत्र का जप से जीव किस प्रकार से आगे आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने कहा इस मंत्र से आपको समस्त प्रकार की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त होने वाली है। एवरीथिंग व्हाट एवर यू डिजायर इन योर लाइफ विल गेट फुलफिल्ड बाय दिस मंत्र। अब ये उस मंत्र का जप कर रहा है, एक ग्वाला है, तो इस मंत्र का जप करने लग गया। तो आगे आगे हम सुनेंगे कैसे इस मंत्र के प्रभाव से गोप कुमार के जीवन में क्या चेंजेस आते हैं, और जितनी
उनकी अभिलाषा तीव्र होती जाती है, उसी तीव्र अभिलाषा की इच्छा मात्र से ही भगवान भी उनको आगे आगे रास्ता दिखाते। इसलिए परीक्षित महाराज जी माता उत्तरा को पहले ही कह दिया कि जिस व्यक्ति को इस रस को पान करने की लालसा है, जिस व्यक्ति के अंदर इस रस को सुनने की, पान करने की लालसा है, वही इसका योग्य जो है योग्य है। He is qualified who has desire to hear this. Otherwise, there may be many जो कथा में बैठेंगे, परंतु उसी को इसका रसास्वादन मिलेगा, उसी को इसकी अनुभूति मिलेगी जिसके हृदय में जितनी मात्रा में लालसा बढ़ गई है। The only qualification is लोलियम, लालसा, डिजायर किस प्रकार की, प्रथम सेकंड में ही परीक्षित महाराज जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से मेरे इस भागवतम के सार को प्रदान किया। हमारे तात्पर्य में टीका में लिखते हैं कि क्या कि भागवतम तो समस्त शास्त्रों का सार है। हमने सुना है ना, भागवतम समस्त शास्त्रों का सार है। अब समस्त शास्त्रों के सार को आपको मिल गया, अब उसका सार कैसे निकाला जा सकता है? Can anyone remember what we discussed? अगर भागवतम ही समस्त शास्त्रों का सार है तो सार कैसे निकाला जाएगा? What is the specialty why बृहद भागवतामृत has become the सार ऑफ सार? कैसे हो सकता है? आपने जूस निकाल दिया, भागवतम को पहले ही बताया गया इसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं है, या आपने जूस बनाया इसमें कोई बीज छिलका कुछ भी नहीं है, बस जूस ही जूस है। अब जूस में से कैसे जूस निकलेगा? तो पहले ही छिलका और गुठली अलग कर दिया गया आम से। और ये छिलका और गुठली क्या था? अगर हम भागवतम का भी थोड़ा सा 2 मिनट समझने का प्रयास करेंगे, जब बताया गया अमल पुराण, इसमें कोई अमल नहीं है, इसमें कोई मल नहीं है, इसमें कोई एक फल के समान है जिस फल को न तो गुठली है न तो छिलका है, अर्थात आम है उसका छिलका भी उतार दिया गया, गुठली भी उतार दिया, अब रस ही रस बचा। ये गुठली और छिलका क्या था? Anyone has any idea when it is said it is without seed or without skin? What is that? तो कहते हैं, गुरुजन वर्णन करते हैं, सीड एंड स्किन मींस इसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण अभी नहीं रहा, अब ये प्योर भक्ति बन गई है। ये शुद्ध भक्ति ही भागवतम में वर्णन किया गया है। इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है, इसमें कोई कर्म कांड, इसमें कोई ज्ञान कांड का कोई मिश्रण नहीं रहा। कर्म कांड अर्थात by doing this activity you will get this, by doing that activity you will go to that planet, भगवान सर्वे सर्वे सर्वाश्वरा है, इन सब वो सर्वे सर्वेश्वर है, मगर किसी में इसमें ज्ञान का मिश्रण अब नहीं रहा। इसमें भक्ति ही भक्ति का पूर्ण रूप से सिंचन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। और जिसमें भक्ति ही भक्ति है तो फिर बृहद भागवत अमृत में क्या निकल गया फिर से, जो पहले ही भक्ति बची। सो व्हाट इज नाउ इन बृहद भागवत अमृत देन? वही उस भागवतम को फिर से मंथन क्यों करना पड़ा परीक्षित महाराज को? Any guess? Anything? Anyone want to try? It is not necessary we have to be right. We can just give a try. What can be the specialty in the Brihad Bhagavatamrita? Why it has to be again churned? Prabhuji, is it that it explains only about bhaktas and their devotion? Yeah. Bhagavatam is explaining Nothing bhakta else. and their devotion. That is true. Bhagavatam में भक्त और भक्ति के बारे में ही वर्णन है, भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में ही वर्णन है। That is no doubt about Srimad Bhagavatam. But then further churning is Brihad Bhagavatamrita. उस प्रोसेस को पाना कैसे वो बताया गया है प्रभु जी। प्रोसेस गोल सेट करने का बता दिया। वेरी नाइस वन पॉइंट इज, उसको गोल सेट करने का बता दिया। उस प्रोसेस को पाना कैसे, इस गोपाल मंत्र की विशेषता बता रहे हैं। दैट इज आल्सो गिवन, इवन भागवतम आल्सो एक्सप्लेन। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट सनातन गोसाई पाद इज राइटिंग, ही इज सेइंग दैट अभी भागवतम में भी आप देखेंगे कहीं कहीं ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन है, जहां पर थोड़ी सकाम भक्ति भी, थोड़ी भक्ति ही है तो थोड़ी सकाम भक्ति का भी वर्णन है थोड़ा बहुत। इट इज नॉट समथिंग अबाउट कर्म कांड, बट इट इज भक्ति, बट इट इज सकाम भक्ति का भी वर्णन है। कहीं कहीं जगह पर अलग अलग प्रकार से द होल मटेरियल क्रिएशन, ऑल दोस थिंग्स, इनका भी वर्णन है। अब इसको चरण करके परीक्षित महाराज जो है उसमें से विशेष जो नेक्टर है, जैसे दूध से मलाई आपने निकाली अब, या दही का मंथन करके आपने उसमें से मक्खन तो निकाल दिया, अब मक्खन तो मक्खन है, मक्खन में कोई मिश्रण नहीं है, मगर मक्खन को फिर से चर्निंग करके या फिर से उबाल करके जब घी बनता है, इट इज फर्दर कंडेंस्ड इन द फॉर्म। क्या इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया अब केवल माधुर्य रस की परिकाष्ठा, विशेषकर गोलोक वृंदावन धाम की परिकाष्ठा को ही प्रकाशित कर रहा है।
भागवतम को भी चरण करते करते अभी प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश चरित्र, ये सब चरित्र बड़े ही विशेष है, बड़ी ही हम सब भक्तों को इनको सुनना है, इससे दृढ़ता आनी है। परंतु ये सब सुनने के बाद या ये सब समझने के बाद या इन सब चीजों को समझने के बाद सनातन गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, अभी जो चीज यहाँ पर प्रकाशित हो रही है वो माधुर्य रस की चीज प्रकाशित हो रही है। अभी इसमें डायरेक्टली ब्रजिक में प्रवेश हो रहा है। भागवतम का दशम सिकंद जो भगवान कृष्ण लीला है, इसको क्या कहा गया है? हमने पहले भी सुना ना, भगवान के 2 पैर, पहले 2 सिकंद, जंगाएं, भुजाएं, पेट, वक्ष और जो मुखारविंद है ये दशम सिकंद है, जिसमें भगवान कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान का मुख है, मुख सबसे सुंदर, सब लोग मुख को ही देखते हैं। तो इस भगवान के मुखारविंद का जो अमृत है, अब इस पूरे भागवतम ग्रंथ से जो टॉप मोस्ट जो नेक्टर है, जो कृष्ण लीला है, उसमें से भी कृष्ण लीला में भी कोई मथुरा लीला, कोई द्वारिका लीला, कोई उन सब का थोड़ा वर्णन है, परंतु जो मेन एंट्रेंस यहाँ पे की जा रही है वो गोलोक वृंदावन में ही कराई जा रही है। और इसके लिए क्या अभिलाषित है? इसके लिए अभिलाषा कहते हैं, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, भागवतम में तो कोई मल था नहीं, उसमें कोई कुछ बचा ही नहीं था, पर इस सार रूप को प्रकट करने की क्या, व्हाट वाज द नेसेसिटी एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? ही इज सेइंग द क्वालिफिकेशन इज सच्चिनंदन गौर हरि's अहेतु कृपा। सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु की अहेतु कृपा ही इसका एकमात्र कारण है, इसको प्रकाशित किया जा रहा है। और क्वालिफिकेशन क्या है? कहते हैं लंपटा, एक लंपट की भांति। लंपट एक प्रकार से लंपट कहा गया है जो मदमत होता है या जो बेशर्म है। बेशर्म शब्द लंपट एक संस्कृत शब्द, बेशर्म, बेशर्म मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे में क्वालिफिकेशन नहीं है, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई कैन नॉट गेट इट, बट मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता क्वालिफिकेशन क्या होती है। काम है मेरे पास, काम, मेरे अंदर काम है। क्रोध है, हाँ मेरे पास क्रोध भी है। संसार भोगने की इच्छा, हाँ वो भी है। फिर ये तो नहीं मिलेगा, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, पागलपन की मुझे ये चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं यही इसकी योग्यता है। अगर किसी में ये योग्यता इस ग्रंथ को पढ़ने से आ गई कि मुझे ब्रिज रस चाहिए, मुझे ब्रिज रस में डूबना है, मुझे ब्रजेंद्र नंदन का प्रीति चाहिए, मुझे उनकी सेवा चाहिए, तो यही क्वालिफिकेशन है कि आप उसके प्रति एक लंपट, एक पागल हो जाएं कि मुझे ये चाहिए, अन्यथा देयर इज नो अदर क्वालिफिकेशन। और ये क्वालिफिकेशन कौन प्रदान करें? सच्चिनंदन गौर हरि की अहेतु कृपा है, उन्होंने कृपा शक्ति को फ्री कर दिया कि कोई क्वालिफिकेशन मत देखो, चाहे वो जड, अंध, आतुर, अवधि पार है, जड है, he doesn't have any knowledge about spiritual science, he doesn't have any, he doesn't understand the concept of soul, the concept of how material world is created, how is annihilated. He is jad on these tattva. Andh, he is blind by, not by eyes, blind by mind. Oh, मदमत है, संसार में पड़ा हुआ अंधा जैसा, जड, अंध, आतुर, अवधि, उसमें किसी प्रकार की विद्या का ज्ञान नहीं है। कि सब लोग पार कर गए, कैसे पार कर गए? नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से, गौरंग महाप्रभु की कृपा से। तो गोस्वामी पाद कहते हैं इसलिए इस ग्रंथ का प्रवेश इस ग्रंथ में और इस ग्रंथ के अभिष्ट को प्रदान करने का जो एक लक्ष्य है या जो हमने प्रदान किया है, ये सच्चिनंदन गौर हरि की अहेतु कृपा है। इस अहेतु कृपा को वंचित मत करो। Don't reject the kripa of Mahaprabhu. I remember one lecture by Gaur Govind Goswami Maharaj. He says, don't, I'm not getting the exact word, but वो कहते हैं don't reject the kripa of Mahaprabhu. महाप्रभु के कृपा से दूर मत भागो. Don't run away. हाँ, don't run away from the mercy of Mahaprabhu. Mahaprabhu is giving his mercy, causeless mercy everywhere. एक बाढ़ आई हुई है, सब प्रेम उस बाढ़ में डूब रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने उस बाढ़ को खोल दिया, उसका बांध जो टूटा हुआ था, जो बांध लगा दिया गया था कृष्ण लीला में, राम लीला में, उस कृष्ण प्रेम को बांध दिया गया। बांध जब होता है ना, डैम, बांध इज नथिंग बट ए डैम। डैम क्या करता है? डैम का काम क्या है? पानी को रोकना। उसी प्रकार से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के द्वारा इस प्रेम भक्ति को रोक दिया गया। ओनली यू विल गेट, यू कैन नॉट गेट, यू हैव दिस देन यू विल गेट इट, यू हैव दिस देन यू विल गेट इट। बट व्हाट इज नित्यानंद प्रभु का? नित्यानंद प्रभु ने के अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, जो अबाध करुणा का सिंधु था, जो सागर था भगवत कृपा का, उसका जो मुहान, उसमें जो डैम लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया। बोले बोले कृष्ण प्रेमा में यारवान, बोले सबको कृष्ण प्रेम दे दो।
अब ये बाढ़ बह रही है कृष्ण प्रेम की, इतना आनंद वाली वस्तु है, इससे मैं दूर भाग रहा हूं। कैसा मूर्ख व्यक्ति हो जो उससे दूर भागेगा। मैं इस जो मधुमक्खी के छत्ते से लटक रहा हूं, इसका एक बूंद के मैं ही पागल हो रहा हूं। अरे यहाँ पर आनंद की बाढ़ आई हुई है और तुम उस मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद के पीछे भाग रहे हो। तो इसे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि महाप्रभु की हेतु कृपा से हमको ये प्रदान हो रहा है। सबको नहीं प्रदान होता, सबको मिलने वाला नहीं है ये चीज। ये वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ी गोपनीय वस्तु है। गुरुदेव की कृपा से उनका विशेष वैशिष्ट इस संसार में वो आए, इस चीज को प्रदान करने के लिए हमारे गुरुदेव ने विशेष रूप से इसका वितरण किया, विशेष रूप से इसका वितरण किया। कहते कि कोई क्वालिफिकेशन, महाप्रभु ने कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी तो हम क्यों क्वालिफिकेशन बीच में डाल दे, हम क्यों बोलते नहीं ये नो, इट इज फॉर एवरीवन। बट देन व्हाट इज, व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग इट? जैसे शेष बोले ना, उस ब्राह्मण की क्या गलती थी? What was the fault of that Brahman? What was the fault of that king? That he did not get this Krishna Prem. He did not get utmost mercy of Krishna because they are not hearing. They are not hearing. And why people are not hearing? Why they sometimes run away? Because there is no adhikar. अब अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि साधन भी कम है। सब कुछ they are all linked together. Chains. या तो मेरा साधन की शक्ति से मैं कर पाऊंगा, या तो गुरु वैष्णव की हेतु कृपा से हो पाएगा। मेरे साधन में बल तो है नहीं भाई, साधन में कोई ऐसा साधन बल हो ही नहीं सकता कृष्ण प्रेम को प्रदान कर सके। इसलिए गुरु वैष्णव से ही प्रार्थना करेंगे कि वो हमको ये प्रदान करें, और गुरु वैष्णव इसको वितरण कर रहे हैं, फ्रीली वितरण कर रहे हैं सबके लिए। तो जस्ट डोंट रन अवे फ्रॉम द मर्सी ऑफ कृष्ण, जस्ट इमर्स योरसेल्फ इन दैट कृष्ण प्रेम। इस कथा के माध्यम से इसमें डूब जाओ, आप देखोगे सही में आनंद की अनुभूति आएगी। कोई संसार का और कोई सुख इसके सामने, कथा के सामने और कृष्ण प्रेम के सामने फिर कुछ भी नहीं, जड़ सुख तो कहना ही क्या। सो धीरे धीरे हम इन विषयों को आगे सुनेंगे। गोप कुमार की जर्नी जस्ट अभी शुरू हुई है। टुमारो वी विल हियर फर्दर व्हाट इज हैपनिंग टू दिस ब्राह्मण कुमार नाउ। गोप कुमार अभी अपनी स्टोरी बता रहे हैं उस जंगल में जब उनको वो एक साधु मिला। सो एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? आई नो वी हैव टेकन extra time because we had also glorified Vaishnav Thakur today. So still anyone has any question or comment or anything anyone to add? कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? कोई कमेंट है? प्रभु जी वो मैंने पीडीएफ का कहा था, इसका वो आपने भेजी नहीं। भागवतम पीडीएफ दीदी ने भेजा था, आपको नहीं मिला? अच्छा, आप ग्रुप में है क्या? वीकेंड ग्रुप में है आप? नहीं। आप मदन मोहन ग्रुप में है ना? अच्छा, हाँ जी। मैं भेजता हूँ। फर्स्ट खंड का है, सेकंड खंड का पीडीएफ नहीं है। सेकंड खंड का मैं पीडीएफ भेजता हूँ। अपने दीप्तोषी दीदी ने या देवेशी दीदी ने उनका पूरा लिंक भेजा था along with the path on the purebhakti.com, but don't worry, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, मेरे सिस्टम में है। मैं अभी कथा के बाद तीनों ग्रुप्स में डाल दे दूंगा इसका पीडीएफ, आप पढ़िए। प्रभु जी इसका और भी ग्रुप है क्योंकि कई बार लिंक नहीं आता ना। मैं एक और ग्रुप में आपको दीदी ऐड कर देता हूँ। आई थिंक क्या मैं आपको ऐड करूंगा। एक ग्रुप है जो हम ये कथा सैटरडे हर सैटरडे हाँ क्लास होती है, हर सैटरडे 11 बजे, संडे को 6 बजे। एक्चुअली ये ग्रुप पिछले 1.5 साल से चल रहा था। हमने यहाँ पर गीता से शुरू करते हुए फिर थोड़ा भागवतम का इंट्रोडक्शन लेते हुए बृहद भागवतम में शुरू किया, क्योंकि हमारे दूसरे कृष्ण के ग्रुप में तो सिस्टमैटिक जो हमारे बुक्स है ना उसको पढ़ रहे हैं। पर आप लोगों में जिसमें भी इच्छा है, जिसको भी डिजायर है, मुझे पिंग करें। आई विल एड यू इन दिस ग्रुप ऑल्सो। यहाँ पर डेली कथा भी होती है चैतन्य चरितामृत के ऊपर, और वीकेंड कथा होती है बृहद भागवत अमृत के ऊपर। तो मैं आपको ऐड कर दूंगा शिवानी दीदी, ठीक है? और प्रभु जी कई बार पता नहीं फिर सैटरडे की क्लास रह जाती है। आई थिंक आई विल ऐड बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर। जैसे गोप कुमार के इस जर्नी से हम सीख रहे हैं कि किसमें उत्साह है, किसमें रुचि है, उसी को इस कथा को सुनना भी चाहिए। पर आप लोग, आप तो दीक्षित है, आई नो। सो whether it is दीक्षित और नॉट, आई हैव सीन गुरुदेव के मधुर स्मृतियों का आप ऐसे ऐसे अनुभव देखेंगे। मे बी ट्यूसडे इज आवर गुरुदेव व्यास पूजा, भक्तिनाथ नारायण गोस्वामी's बर्थडे, व्यास पूजा आविर्भाव तिथि आज त्रिविक्रम महाराज जी का है। तो मैं कहीं पिछले देयर इज सम वन लिंक आल्सो गुरुदेव की मधुर स्मृतियां, आप अगर उसको देखेंगे ना, ऐसे ऐसे भक्तों के अनुभव जो गुरुदेव से कभी मिले ही नहीं है, पर केवल उनके चरणों में प्रार्थना करने से, उनको अपने हृदय में गुरु मानने से
उनका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। मैंने बहुत सारे, एक माता जी बोलती है मैं तो गुरुदेव को बोलती मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, मेरा तो नाम भी नहीं होता। गुरुदेव बोले बस राधे राधे जपो, कुछ नहीं हो रहा तुमसे, राधे राधे बोलो, बोलते रहो। तो लास्ट के दिन वो बीमार थी इतनी, लास्ट वो 2 दिन तक राधे 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 ऐसे कर रही है, हाँ आ गए कन्हैया, आ गए कन्हैया, आ गए, ऐसे कर रही है। और एक माता जी जिनकी बहू ने चुपके से दीक्षा ली, वो जम्मू की माता जी, उन्होंने अपना अनुभव बता रही थी कि क्योंकि हमारे यहाँ पर कश्मीरियों में बहुत थोड़ा सा देयर इज ऑलवेज सम, अभी से भजन क्यों करना, अभी से ये सब क्या है। और वो यंग लड़की थी, यंग शादी हुई थी, राजकुमारी माता जी के पास आती जाती थी, उनसे मित्रता हो गई थी। तो कहते मैंने तो चुपके से माला ले ली गुरुदेव से, अब फिर माला रखूं कहाँ, घर वाले बोलेंगे इस उम्र में माला वाला करना शुरू कर दिया, डंडे मारेंगे। मैंने सोचा ट्रंक में रखूंगी, मैं ट्रंक में रखने की। पर कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा था कि कोई मुझे भगवान या कुछ सपने में आया था, बोला तुम्हें कोई एक साधु कोई चीज देगा, वो जब उसको फिर छोड़ना नहीं, उसको अपने पास रखना, नहीं तो मर जाएगी। तो मुझे डर लग गया, बोले मैंने माला करना शुरू कर चुपके चुपके। फिर कभी एक बार पति ने देखा ये क्या कर रही है, तो बोला कोई बात नहीं ठीक है कर, अच्छा कोई गलत काम नहीं, माला कर रही ठीक है। मुझे सास से बोला मुझे मेरी सास को मत बताना, तो बोले सास को भी कैसे पता लग गया। तो सास जो है बोलती वो फिर माता जी के पास गई, बोले मुझे भी एक माला दे दो ना। तो वो कहते कि मैंने गुरुदेव की माला मेरे पास 2-4 पड़ी थी, दीदी प्रभु ने 2-4 मालाएं दी थी, मैंने अपने पास रखी, मैंने एक माला उनको दे दी। बोला आप जब गुरुदेव को कभी देखे ही नहीं, वो पर अंतकाल में उनका जब समय आया, बोले इस प्रकार से वो कहते हैं अभी तो आया कृष्ण, ये कृष्ण किधर गया, ये कृष्ण किधर गया। मतलब मे बी इट इज कृष्ण और नॉट कृष्ण, बट द कॉन्शियसनेस हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दैट गुरुमाला। वो मंत्र जब से गुरुदेव को अपना गुरु मानने, हृदय देखा ही नहीं कभी ना गुरुदेव से साक्षात माला ली। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने गुरुदेव के शरणाश्रित लेने के कारण उनको गुरुदेव के साक्षात दर्शन हुए, सपने में, या साक्षात ही बोल सकते हैं उसको, सपना नहीं बोल सकते उसको। और उनके अंतकाल के अनुभव ऐसे कि वो कृष्ण 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 करते ही शरीर छोड़ दी। सो हाउ कैन, व्हाट कैन बी मोर ग्लोरियस देन दिस। सो जैसे मैंने पहले बताया ना, गुरुदेव इज नॉट जस्ट ए पर्सन, इट इज अ तत्व। इस तत्व से हाँ वी मस्ट हैव फिजिकल गुरु बिकॉज दैट वाइब्रेशन विल कम फ्रॉम हिम। वो बीज जो उसके उनके हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफर होता है, वो बीज जितना परिपक्व हुआ हो, फल उतना, पेड़ उतना परिपक्व होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शुड हैपन। बट जब तक वैसी अवस्था नहीं है तब तक गुरुदेव को अपना आश्रय मान के, कृष्ण प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो अनुभूतियां हमारे जीवन में जरूर होंगी। सो ये पता नहीं कौन मैंने क्यों बोला, पर ये प्रश्न शायद रिलेटेड था कि नहीं। So ठीक है, the point was कि I will add you, so those who have that desire, they can hear this katha, they can get transformed. Those who don't have this desire, जिनके पास अधिकार नहीं है, वो भले ही कथा में आएंगे भी पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। कृष्णदास कविराज को से वर्णन करते हैं, I have designed Chaitanya Charitamrita in such a way that fools will not open this book, and if some fool by chance open this book, he will close it and he will not understand how these topmost granthas had been written. बट हम लोगों के पता नहीं क्या है, तो कृपा गुरुदेव की है कि हम सब इस ग्रंथ का अध्ययन, पहला खंड हमने पूरा अध्ययन किया, इतना आनंद पूर्वक हम समझे इसको। और मैं भी बड़ा प्रसन्न, बड़ा दंग रहता हूँ जब आप लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ कि किस प्रकार से आप इन चीजों को समझ रहे हैं और जब फिर वर्णन करते हैं। इट गिव्स रियली नाइस प्लेजर कि हम इस तत्व सिद्धांत के, एंड इट इज नॉट नेसेसरी, you will see from the Gopakumar's journey, it is not just this lifetime what he is saying. He will tell his many lifetime story, and we don't know which lifetime we have done. We would have become Brahma, we may have become Indra, we may have been in Vaikuntha also possibly. You will see from the Gopakumar's journey this practically how it is happening. ठीक है, समय बहुत हो गया, I will not take more time. कल हम 6 बजे फिर मिलेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न रह गया हो या कोई कमेंट रह गया हो तो tomorrow first half we will cover that. हम पहले कृष्ण और कुछ कमेंट लेंगे अगर कल लेना है, और नहीं तो कल हम फिर से गोप कुमार की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बोलो श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा अष्टसखी वृंद की जय, श्याम सुंदर कन्हैया लाल की जय, बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय, बोलो गोप कुमार की जय, बोलो अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, इसलिए भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की जय, जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय गुरु प्रेमानंद, हरे कृष्ण हरे बोल।